Hello. See here, if 1 2 belongs to R, why 1 2 belongs to R? Because 1 is less or equal to 2 cube. It is true. Implies that 1 is related to 2, means 1 2 belongs to R. So what is the required condition for the symmetric relation? 2 1 should be belongs to R, but it is not 2. 2 1 should be belongs to R, implies that. See there, it is not satisfying the condition of given relation in set of real numbers. 2 should be less or equal to 1 cube, not true. Means 2 1 does not belongs to R, applied there. 2 1 not belongs to R. Not belongs to R means not symmetric. R dash is not symmetric in the set of real numbers. Now, third, R dash is reflexive in set of real numbers. Relation R dash is not symmetric in the set of real numbers. Now, R dash is transitive or not transitive? Let us check it. अर्थात R dash संक्रामक है कि नहीं है, आओ इसका पता लगा। संक्रामक। तो यस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन? 3 elements. A is related to B, B is related to C. Relation mentioned by R dash. Then it is required condition for the transition relation. A should be related to C. है ना? Where A, B, C are real numbers. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? A B रिलेशन के सेट में है, BC रिलेशन के सेट में है, तो हमको ये सिद्ध करना है AC भी रिलेशन के सेट में होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। अभी रियल नंबर्स है इसलिए इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए हम ले लें 3 numbers 2 3/2 related or not related? If ordered pair 2 and 3/2 is satisfying the given condition in relation R dash, means it is lie in the relation R dash. तो देख लेना, since 2 is less or equal to 3/2 का क्यूब, देख लीजिए। If 2 is less, तो इसको बिलोंग करता है, तो 2 is less or equal to 27/8। ध्यान देना, यदि ये 24 भी होता तो भी 3 आ गए, तो 27 है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 3 से भी ज़्यादा आएगी, और 3 से बड़ी संख्या 2 से छोटी है। 3 से बड़ी संख्या इधर 2 है और इधर 3 से बड़ी संख्या है, तो कंडीशन सही है क्या? 2 छोटा या बराबर है 3 से बड़ी संख्या के। ओके, व्हाट इज इट? 3 4 24 3/8, तो इट इज मोर देन 3। क्लियर? तो यस, 2 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन R dash। अब दूसरा एक पेयर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हमने अभी एक क्या लिया? इफ 2 3/2 बिलोंग्स टू R dash। अब दूसरा ले लें, 3/2 मीन्स 1.5, साथ ही एंड दूसरा हमने ऑर्डर पेयर लिया, ये 1.5 लिया। अब ये 1 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, 1 and 1/5 मीन्स 6/5। ये बिलोंग्स टू R है, पहले तो ये चेक कर लेना R dash, check it. Since
3/2 should be less 6/5 cube. 3/2 should be less 216/125. ध्यान देना, ये डेढ़ है 1.5 और ये लगभग 2 के बराबर 1.5 से तो ज़्यादा ही आएगा। भाग देना आप, आएगा ज़्यादा है ना। 120 125 का 1.5 गुना 190 216 है। ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? तो यस, 3/2 also belongs to RS. So now what is the required condition? Now 2 and 6/5 should belongs to RS, है ना। तो देखते हैं, 2 should be less or equal to 6/5 का क्यूब, 2 should be less or equal to 216/125। 2 नहीं आएगा, it is not 2 because it is less than 2, it is not 1.8 or 9 something, तो not true। यहीं पर बोल दो, 250 होता तो 200 आता, कम है तो ये 2 छोटा होगा, 2 से कम संख्या के, ये 2 से कम है, इट इज नॉट ट्रू। मीन्स 2 and 6/5 नॉट बिलोंग्स टू RS। तो रिलेशन RS जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित है, वो संक्रामक नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। अभी छठा क्वेश्चन आपके लिए, टेस्ट के लिए, आपके होमवर्क के लिए ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यहाँ पर केवल हमने जो रिलेशन RS लिया है उसमें A लेस आर इक्वल टू B क्यूब है और इसमें A लेस आर इक्वल टू B स्क्वायर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको होमवर्क से करोगे, देखोगे और जब खुद करोगे, यस, डू इट एंड लर्न इट। जो प्रैक्टिस करता है वो सीखता है। इफ यू आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, यू आर क्लैपिंग at the time 6 stroke 4 stroke completed by the batsman, no, and you are clapping, you are cheering to the player at the time bowler ball out to the batsman. We are enjoying, but we are not practicing the player at the playground. So you can't learn cricket. You can enjoy cricket, but you can't learn cricket if you are not at the ground, if you are not at the pitch. Understand? You have to do your service. Otherwise, a lot of lectures attended by you, but result zero. Because we are only clapping, we are only cheering, but we are not practicing. If you do practice, you will learn it and memorize. Remember, सीखना शुरू कर दो। स्टार्ट टू लर्न, नॉट स्टार्ट टू स्क्रीमिंग। रटना छोड़ दीजिए। मैथ्स, फिजिक्स, साइंस रटने वालों का है ही नहीं। जो सीखता है वो लिखता है। सीखी हुई चीज ताउम्र रहती है, रटी हुई चीज चंद घंटों के बाद में भूल जाते हैं। आपको 9th में सर ने बहुत सारे प्रश्न याद करवाए थे, आपने याद भी कर लिए, लिख भी दिए, और अभी मैं पूछूं उनके बारे में तो आप बोलोगे सर वो तो 9वीं की बात है। तो मुझे हंसी आती, भाई साहब 9वीं में सीख के आए होते तो यहाँ बोल देते। चूँकि आपने केवल परीक्षा में लिखने के लिए याद किया था तो थोड़ा सा हमारा है ना नज़रिया बदलो। नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। आंखें घुमाओ तो इशारे बदल जाते हैं। शबनम का साथ मिले तो फूल खिल जाते हैं। और आप जैसे सीखने वाले यदि हमारे साथ हो जाए
तो थोड़ा बहुत बोलने वाले भी ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए। सीखना शुरू करो। सीखा हुआ चीज़ ताउम्र रहती है, रटी हुई चीज़ भूल जाते हो। हमने साइकिल चलाना बचपन में सीखा था और 20 साल 25 साल हो गए अभी तक साइकिल नहीं चलाई है। आज मेरे को मजबूरी में मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं है मेरे पास, कहीं जाना और जल्दी है तो मेरे को साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोलूँगा मैं साइकिल भूल गया? सीखी हुई थी तो कभी भी बस बैठे और चालू हो जाएंगे, वहाँ देखना नहीं पड़ेगा। बिकॉज वी हैव प्रैक्टाइज्ड इट, वी हैव लर्नड इट। चाय बनाना आपने बचपन में सीखा था, उसके बाद में आज तक दुर्भाग्य से बनाने का मौका नहीं मिला, पर आज सौभाग्य आ गया कि बनाना पड़ेगी आपको। तो आप ये बोलेंगे मेरे को बनाती नहीं आती, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड, यू हैव लर्नड इट, नेवर चांसेस टू फॉरगेट इट। तो भैया सब्जेक्ट को सीखना शुरू कर दो, आज से बंद कर दो पढ़ना लिखना। कोई बोले कि कर सर मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, बंद कर दो, पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सीखने जा रहा हूँ। पढ़ा हुआ किताब पूरी पढ़ो, मुझे खुशी नहीं होगी, पर एक चैप्टर को सीख के देख लो, बहुत खुशी हो, क्योंकि हमेशा आप कह सकते हो ये मेरा है। ओके, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है। मुझे उम्मीद है कि आज से तुमने सीखना शुरू कर दिया होगा। और कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट जब तक हमारे दिमाग में क्लियरली होता है, नेवर अवॉइड इट, ट्राई टू डाइजेस्ट इट, try to confirm with your own intention. If you are avoiding it, means you are weakening yourself. आप अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हो। यदि आपके दिमाग में कोई आ रहा कि नहीं है यहाँ पर किताब में गलत है, तो हो सकता है किताब में गलत छपा हुआ हो, पर हम किताब को सही मानते हैं और अपने आप को गलत मानते हैं। जबकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको लगता है कि ये सही है, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में गलतियाँ हैं जिसमें फिगर्स में धाराएं और उनमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो बच्चे बेचारे उनको ही रट के लिखाते हैं और अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, मैंने ऐसे ही लिखा, जबकि उसमें जो गलती से प्रिंटिंग हो गया, किसी जल्दी में हो गया, हो जाती है गलती, इंसान से गलती होती है, तो पब्लिशर से भी गलती हुई। देयर आर ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक। तो व्हाट एवर रिटन इन टेक्स्ट बुक, नेवर believe it 100%, maybe their fault. You think your own self as and try to digest it with the real concept. Maybe you are right and it will wrong. You are correct and there is incorrect. When you are confident in yourselves, definitely a day will come, your opinion will be correct and that opinion will be incorrect. ओके, और ये सब कब आता है? जब हम किसी भी सब्जेक्ट को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सीख के खूब मन से लिखते हैं। ओके, थैंक यू, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक्स।